No one can defeat a powerful mind. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started a series on the international law, and in this series I have discussed certain important questions relating to the international law which are important for the examination point of view. Today I will discuss with one more important question relating to international law, that is the what is nationality and what are the various modes of acquiring and losing the nationality? Is there any difference between the nationality and the citizenship in India? This is our question. If we talk about the term nationality, in international law, nationality constitutes essential link between the individual and the state. As citizenship provides legal status to the person in the country, in the same way, nationality denotes the legal status of an individual that acquires by virtue of his membership of an independent political community, determining his rights and obligations at the international law. Thus, what citizen is to municipal law and the nationality is to the international law. So, what a person is out of his parent state is territorial limit, and the international and individual is known by the nationality he keeps. This means we can say that when a person is out of his parent state टेरिटरी लिमिट, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी स्टेट्स की लिमिट से बाहर होता है तो एन इंडिविजुअली नोन बाय द नेशनलिटी ही कीप्स, उसको उसकी नेशनलिटी से ही पहचाना जाता है. If we talk about the certain definitions relating to the nationality, there are certain definitions given by various jurists. First definition is given by Professor Oppenheim. According to Professor Oppenheim, nationality of an individual, the quality of being a subject of a certain state, and therefore its citizens. This is the definition given by Professor Oppenheim. And the second definition is given by Professor Fenwick. According to Professor Fenwick, nationality is such a bond which binds an individual with the state and makes him a member of that specific state and provides for the rights of protection from that state with an obligation to abide the law promulgated by that state. This is the definition given by Professor Fenwick. And the third definition is given by Professor Kelson, that is, citizenship or the nationality is the status of an individual who is legally a member of the state, and ornamentally he can be called as a member of that community. तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर कैल्सन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनलिटी, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रीयता वो गुण है जो किसी व्यक्ति की सदस्यता के द्वारा उत्पन्न होती है और जो किसी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति या राज्य और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित निरंतर चलने वाला वैध संबंध है. अतः किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता उसके किसी राज्य की प्रजा होने का संकेत है. और ये बात कि कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट राज्य, दिए हुए राज्य का राष्ट्रीयता वाला है, उस राज्य की आंतरिक विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि अंतर्राज्य विधि द्वारा. जैसा कि मैंने आपको प्रोफेसर फैनविक जी की परिभाषा बताई है, प्रोफेसर फैनविक जी के अनुसार राष्ट्रीयता एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को राज्य का साथ संबंध स्थापित करके उस राज्य विशेष का सदस्य बनाता है और उस राज्य का संरक्षण अधिकार दिलाता है तथा उसके उत्तरदायित्व होता है कि वो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे. सेकेंड डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर कैल्सन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैल्सन, नागरिकता या राष्ट्रीयता एक व्यक्ति की वो स्थिति है जिससे वो वैध रूप में किसी राज्य का सदस्य है तथा अलंकारिक रूप में उस समुदाय का सदस्य कहा जा सकता है. इसी तरह से आप प्रोफेसर हाइट जी की परिभाषा ले सकते हैं. प्रोफेसर हाइट जी के अनुसार राष्ट्रीयता एक राज्य और उस व्यक्ति के बीच उस संबंध को प्रकट करता है जिससे राज्य अनेक आधारों पर यह समझ लेता है कि उस व्यक्ति की निष्ठा उस राज्य के प्रति है. तो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशन गिवन बाय द सर्टेन जूरिस्ट. ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ टॉक अबाउट द
इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिटी, जैसे कि आप नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखा हुआ है, यदि हम नेशनलिटी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स रिलेटिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए जो इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लेंगे कि द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ द नेशनलिटी। सेकेंड वन इज, if any state does not restrain a person of his nationality from such disadvantageous action which are affecting other states, then the first state shall be responsible to the other state for such action of its nationals। जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर तीसरा अपने पॉइंट बताया, ordinary states don't refuse to accept its nationals in extradition। And the fourth one is, one of the effects of the nationality is that the state has a right to refuse the extradition of its own nationals। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ इसके इफेक्ट बताए गए हैं नेशनलिटी के। नेशनलिटी के महत्व के अनुसार यहाँ पे कुछ निम्न प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, राजनयिक प्रतिनिधियों के संरक्षण के अधिकार राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप ही निर्धारित होते हैं। सेकेंड वन इज, यदि कोई व्यक्ति राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति को ऐसे हानिकारक कार्य करने से नहीं रोकता जिसका प्रभाव दूसरे राज्य पर पड़ता है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति को उसके ऐसे हानिकारक कार्य करने से नहीं रोकता जिसका प्रभाव किसी दूसरे राज्य पे पड़ता है, तो वो राज्य उस व्यक्ति के कार्य के लिए दूसरे राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा। थर्ड पॉइंट, सामान्यतः राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को वापस लेने से इनकार नहीं करते। एंड द लास्ट वन इज, राष्ट्रीयता का संबंध स्वामी भक्ति से ही होता है। एंड द राष्ट्रीयता का एक प्रभाव यह भी होता है कि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति के प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिशन करने से इनकार करने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत से राज्यों के व्यवहार के अनुसार युद्ध के समय शत्रुरूपता राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित होती है। जो एनिमी कैरेक्टर जो निर्धारित होता है व्यक्ति का, वो उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित होते हैं जब युद्ध चल रहा होता है। इसके अलावा प्रादेशिकता के सिद्धांत के अनुसार राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति के ऊपर आपराधिक एवं अन्य मामलों में क्षेत्राधिकार रखते हैं। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट दैट आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनलिटी। यहाँ मैंने कुछ नेशनलिटी को मैंने वो बताए, इफेक्ट बताए हैं जो उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द नेशनलिटी। राष्ट्रीयता को प्राप्त करने के ढंग। यदि हम राष्ट्रीयता को प्राप्त करने के ढंग की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रीयता को कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 के अंदर आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 5 के अंदर पढ़ा होगा कि उसके अंदर राष्ट्रीयता को प्राप्त करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर आर सर्टेन वेज बाय विच नेशनलिटी कैन बी अक्वायर्ड। Nationality laws of every state provide for the acquisition of its nationality by birth, either by just solely, that is by being the born in that state, territory of the state। भी जो भी व्यक्ति उस स्टेट में पैदा होगा वो वहाँ का नागरिक कहलाएगा। और सेकंड वन होता है just sanguinis, that is by descent, being born to parent हु आर इट्स नेशनल्स। भी जिसके माता पिता जिस स्टेट में पैदा होते हैं, तो नेचुरली कि वहाँ यदि वो बच्चा उसी माता पिता पे पैदा हो रहा है, तो नेचुरली वो भी वहाँ का नागरिक कहलाता है। तो कहने का मतलब या तो बच्चे का खुद जन्म वहाँ पे हुआ हो, या फिर उसके माता पिता उस किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी वहाँ का नेशनल कहलाएगा। तो यहाँ पे जब आप नेशनलिटी की बात करते हो, तो यहाँ पे नेशनलिटी 2 तरीके से जनरली एक्वायर की जा सकती है। फर्स्टली बाय बर्थ या फिर बाय पेरेंट्स बर्थ। तो सबसे पहले हम तरीका लेते हैं बाय बर्थ। यदि हम बाय बर्थ की बात करते हैं, जिसको जस्ट सोली के नाम से भी जानते हैं, बाय बर्थ और जस्ट सोली, JUS जस्ट SOLI सोली, मीन्स
Mostly states confers nationality upon a person on the basis of birth. All the persons taking birth within the territorial limit of the state acquires the nationality of that state. एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड जस्ट सोली. ये जो प्रिंसिपल है जहाँ पे बच्चा जन्म लेगा वहाँ का नागरिक होगा, ये जो तरीका है इसको जस्ट सोली के नाम से जाना जाता है. मीन्स व्यक्ति जिस राष्ट्र में जन्म लेता है वो वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेता है, या जन्म के समय जो व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता का होता है. इसके अलावा आप दूसरा तरीका क्या बताएंगे कि जहाँ उसके माता पिता यदि जन्म ले रहे हैं तो जो उसके माता पिता की जो राष्ट्रीयता है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की राष्ट्रीयता को निर्धारित कर सकती है. तो नेशनलिटी ऑफ ए स्टेट कैन बी एक्वायर्ड बाय पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज आइदर पेरेंट्स. मीन्स ए चाइल्ड कैन बिकम ए नेशनल ऑफ ए स्टेट ऑफ विच हिज पेरेंट्स आर नेशनल्स. जिसमें यदि उसके माता पिता जिस भी पेरेंट स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो भी वहाँ का नेशनल कहला सकता है. एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड जस्ट सैंग्विनिस. इसी प्रिंसिपल को जस्ट सैंग्विनिस के नाम से जाना जाता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया जर्मनी और जो फ्रांस है दे कन्फर सच टाइप ऑफ नेशनलिटी. भाई जर्मनी या फ्रांस होती है उसके अंदर इस तरह की नेशनलिटी का प्रावधान बनाया गया है. यदि हम यूएसए या यूके वगैरह की लेते हैं दे आल्सो रिकॉग्नाइज दिस कंसेप्ट विथ जस्ट सोली. वहाँ पे जस्ट सोली का जो कंसेप्ट है मतलब वहाँ पे बच्चा खुद जन्म ले रहा है तो वहाँ पे उसकी नेशनलिटी उसे दे दी जाती है. और जब यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी इसी प्रिंसिपल को रिकॉग्निशन दी गई है. इंडिया के अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी बच्चा जन्म लेगा या उसके माता पिता जिस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं तो बच्चे की नेशनलिटी भी उसी के आधार पर निर्धारित की जाती है. तो ये अब मैंने आपको पहला तरीका बताया नेशनलिटी एक्वायर करने का. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग द नेशनलिटी दैट मे बी बाय नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन मतलब देशीकरण. नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है जब किसी राष्ट्र में रहने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे देशीकरण कहते हैं. देशीकरण किसी राज्य का प्रशासनिक कार्य है जो किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान करता है. और यदि हम देशीकरण की बात करते हैं तो ये देशीकरण जो है ये 6 प्रकार का हो सकता है. जैसे कि मैं आप कह सकते हैं कि विवाह के आधार पर कि जब कोई पत्नी मतलब अब किसी एक लड़की मतलब किसी आदमी से शादी करती है तो वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेती है जहाँ पे उसने शादी करी है. दूसरा आप कह सकते हैं बाय लेजिटिमेसी के द्वारा, तो जिसके द्वारा यदि हम कहेंगे तो उसके द्वारा कोई भी जो इलेजिटिमेट शिशु होता है वो अपने माता पिता की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेता है. तीसरा आप कह सकते हैं विकल्प के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा भी हो सकता है ऐसा. चौथा आप कह सकते हैं स्थायी निवास की प्राप्ति के द्वारा. यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे स्थायी निवास ले ले किसी भी जगह पे तो नेचुरली कि वो लगातार यदि उस जगह पे रहता है तो वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है. और नेक्स्ट तरीका इसका बता सकते हैं सरकारी पद पर नियुक्त. यदि उसको सरकारी पद पे किसी जगह पे नियुक्ति कर दी जाती है तो वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है. और इसी तरह से लास्ट तरीका जो नेचुरलाइजेशन का बताया गया है वो है राज्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर स्वीकृति. यदि राज्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके द्वारा उसको स्वीकृति दे दी जाती है कि वो वहाँ का नागरिक बन सकता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता वहाँ की दी जा सकती है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनलिटी कैन बी एक्वायर्ड सब्सिक्वेंटली बाय नेचुरलाइजेशन आल्सो. And the mostly states confer the nationality by operation of the law due to the effect of certain changes in the civil status of the person. जहाँ पे व्यक्ति का एक सिविल स्टेटस ही चेंज हो जाता है उसके आधार पे भी नेशनलिटी दी जा सकती है. कुछ कंडीशन के आधार पे भी नेशनलिटी दी जा सकती है कानून के आधार पर. जैसे कि मैंने आपको तरीके बताया बाय फॉर्म ऑफ मैरिज. यदि कोई व्यक्ति लड़की ने कोई दूसरी जगह शादी करी किसी लड़के से नेचुरली कि वो वहाँ की नेशनल हो जाएगी. तो ये वाइफ ऑटोमेटिकली गेट्स द नेशनलिटी ऑफ हर हस्बैंड बाय प्रिविलेज ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रोसीजर. इन दिस रिगार्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड अ कन्वेंशन ऑन द नेशनलिटी ऑफ द मैरिड वोमेन 1957. As per this convention, each party state agreed on it and said that changing the status of the marriage afterwards shall not affect the wife's nationality automatically.
मीन्स वहाँ पे जो लड़की है जहाँ पे वो गई है उसके नेशनलिटी तो उसे मिलेगी, और जहाँ से वो आई है उसकी नेशनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो नेशनलिटी का जो मैंने आपको बताया है कि नेशनलिटी ऑफ मैरिड वोमेन 1957, ये जो एक्ट आया है ये इसके आधार पे ऐसा कहा गया है। दूसरा मैंने आपको बताया नेशनलिटी बाय अडोप्शन, यदि अडोप्शन की बात करते हैं या लेजिटिमेशन की बात करते हैं, द लॉ ऑफ मोस्टली स्टेट्स एक्सेप्ट दैट चेंज इन द फैमिली ऑफ ए पर्सन वेदर बाय अडोप्शन और लेजिटिमेसी will have effect on the creation of new nationality, and the child acquires nationality of adopting parents और द फादर थ्रू द लेजिटिमेशन। कि जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कोई बच्चा किसी जन्म तो उसने कहीं और लिया है परंतु किसी दूसरे परिवार के द्वारा उसे अडॉप्ट कर लिया गया है, तो जिस पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया है नेचुरली वो जहाँ पे वो उसके वो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स रहेंगे वो वहाँ की नेशनलिटी प्राप्त कर लेगा, या फिर अपने फादर के द्वारा जो उसे लेजिटिमेसी दे रहा है नेचुरली तो वहाँ पे उसकी भी लेजिटिमेसी के आधार पे उसको नेशनलिटी वहाँ की दी जा सकती है। तो ये मैंने आपको बताया बाय अडॉप्शन और लेजिटिमेशन के द्वारा भी नेशनलिटी दी जा सकती है। तीसरा आप कह सकते हैं रिजम्पशन के आधार पर, इफ ए पर्सन हैज लॉस्ट हिज नेशनलिटी बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एनी रीजन, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जो नेशनलिटी किसी वजह से खो दी है तो वो उसे रिज्यूम कर सकता है दोबारा। तो ही मे एक्वायर द नेशनलिटी ऑफ दैट स्टेट अगेन, दोबारा वो उसी स्टेट की नेशनलिटी यदि वो दोबारा एक्वायर करना चाहता है तो वो ले सकता है। एंड द एक्विजिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ नेशनलिटी इज कॉल्ड रिजम्पशन, इसे हम कहते हैं रिजम्पशन के द्वारा। If we talk about the Indian Citizenship Act 8 सेक्शन 8 क्लोज 2, यदि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 8 क्लोज 2 को देखें तो इट परमिट्स माइनर टू resume his nationality within 1 year from the date of attaining the age of majority। जैसे ही वो एक मतलब वो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी ऑब्टेन करेगा तो वो जो माइनर बच्चा था जो आज मेजर हो चुका है नेचुरली वो बाद में अपनी नेशनलिटी ले सकता है दोबारा वापस। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आल्सो लेज डाउन प्रोसीजर टू द रिजम्पशन ऑफ द नेशनलिटी, तो वहाँ पे रिजम्पशन का आधार बताया गया है। इसी तरह से आप ले सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन का एक तरीका और बताया गया जैसे सब्जुगेशन के द्वारा, व्हेन ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट और द स्टेट इटसेल्फ इज सब्जुगेटेड बाय द अनदर स्टेट, भाई यदि किसी स्टेट का कोई भाग दूसरे स्टेट के द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो नागरिक होंगे ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टेरिटरी बिकम द नेशनलिटी ऑफ द लेटर स्टेट, जिस स्टेट के द्वारा उसे सब्जुगेट किया गया है अक्वायर किया गया है नेचुरली वो सारे नागरिक उसके नेशनल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल when the Austria was annexed by Germany, all the nationals of the Austria became the nationals of the Germany। जब ऑस्ट्रिया को जर्मनी के द्वारा अक्वायर कर लिया गया था, जब उसके द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया था तो वहाँ पे जितने भी ऑस्ट्रिया के निवासी थे वो जर्मनी के निवासी बन गए थे, वो वहाँ की नेशनलिटी उन्होंने अक्वायर कर ली थी। If we talk about the section 7 of the Citizenship Act, it also lays down that if any territory becomes a part of India, all the person of those territories shall be automatically become the citizen of India। कि यदि कोई किसी दूसरे देश की टेरिटरी इंडिया के द्वारा एक्वायर कर ली जाती है तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो इंडिया के नागरिक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये आपको देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 7 के अंदर। दिस मीन्स Thus, when Goa and Daman and Diu became the part of India, इसी के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जब गोवा और जो दमन और दीव इंडिया का पार्ट बने थे तो वहाँ के जो नागरिक थे वो इंडिया के नागरिक बन गए थे। तो दमन एंड तो ऐसी कंडीशन में सिटीजनशिप में ऑर्डर वाज इश्यूड, वहाँ पे सिटीजनशिप का ऑर्डर इशू कर दिया गया था कि वो जो लोग हैं जो दमन एंड दीव या उसके नागरिक थे गोवा के वो इंडिया के नागरिक कहलाएंगे, ये ऑर्डर इशू कर दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इशुलिटी जो नेशनलिटी है देन कैन बी अक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब जो नेशनलिटी है उसको नेचुरलाइजेशन के द्वारा एक्वायर किया जा सकता है। जैसे मैंने इसको तरीके आपको बताया मैरिज के द्वारा, दूसरा मैंने आपको बताया अडॉप्शन या लेजिटिमेशन के द्वारा, तीसरा मैंने आपको बताया रिजम्पशन के द्वारा, फोर्थ इज बाय सब्जुगेशन के द्वारा, एंड द लास्ट वन इज सेसेशन के द्वारा। सेसेशन मतलब क्या होता है? When a part of the territory of the state is ceded to another, then all the nationals for
of the former state acquires the nationality of the latter state. तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या बताया कि जब कोई स्टेट दूसरी स्टेट के द्वारा सीडिड कर दी जाती है तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो लेटर स्टेट के नागरिक बन जाएंगे। तो ये तरीके आपको बताए गए नेशनलिटी को अक्वायर करने के। तो मैंने आपको नेशनलिटी को अक्वायर करने के दो तरीके बताए हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था बाय बर्थ और दूसरा बताया बाय नेचुरलाइजेशन। तो बर्थ के द्वारा तो आप समझ गए होंगे कि या तो वो बच्चा खुद जन्म ले या फिर उसके पेरेंट जहाँ पे जन्म लेते हैं वो वहाँ का भी नागरिक हो सकता है, वो बाय बर्थ की बात आती है। और दूसरा मैंने आपको बताया बाय नेचुरलाइजेशन। जब नेचुरलाइजेशन की बात करता हूँ तो उसके अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया कि जहाँ पे कंडीशन में परिवर्तन आ जाता है, स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, तो उसकी वजह से या फिर किसी सिविल जो उसका जो स्टेटस है उसके अंदर अंतर आता है, उसकी वजह से वो नेशनलिटी एक्वायर कर लेता है। और वो कहाँ कहाँ होगा? मैरिज के द्वारा हो सकता है कि जब कोई लड़की दूसरी जगह शादी करते तो वहाँ की नेशनलिटी ले लेगी, या फिर वो अडॉप्शन के द्वारा हो सकता है कि यदि बच्चा कोई दूसरे स्टेट के व्यक्ति के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है या लेजिटिमेशन उसको दे दी जाती है उस बच्चे को वहाँ के जो पेरेंट्स थे उसके द्वारा, तो नेचुरली वो वहाँ की नेशनलिटी एक्वायर कर लेगा। तीसरा मैंने आपको बताया रिजम्पशन के द्वारा कि यदि उसकी नेशनलिटी किसी वजह से ख़त्म हो गई है तो वो उसको रिज्यूम कर सकता है। चौथा मैंने आपको बताया बस सब्जुगेशन, कि जब कोई पार्ट की जो स्टेट ऑफ टेरिटरी किसी भी पार्ट की वो किसी दूसरे स्टेट के द्वारा अक्वायर कर ली जाती है तो वो वहाँ के जो नागरिक थे पहले वाली स्टेट के वो सारे दूसरे स्टेट के नागरिक कहलाएंगे, वहाँ की नेशनलिटी अक्वायर कर लेंगे। इसके अलावा मैंने बताया सेसेशन के द्वारा कि यहाँ पे यदि कोई पार्ट जो है किसी भी पार्ट की जो टेरिटरी है यदि वो सीडिड कर दी जाती है अनदर स्टेट के द्वारा तो वो सारे नागरिक वहाँ के नागरिक बन जाएंगे। तो दिस आर द सर्टेन मेथड्स ऑफ द एक्वायरिंग द नेशनलिटी। इसके अलावा आप देखेंगे ऑप्शन के द्वारा भी नेशनलिटी एक्वायर की जा सकती है। इन केस व्हेन ए स्टेट इज पार्टीशन इनटू द टू पार्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट के दो पार्ट्स में पार्टीशन कर दिया जाता है, दो या दो से अधिक स्टेट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो नागरिक होते हैं उस स्टेट के जो नागरिक होते हैं नेशनल होते हैं, दे हैव ऑप्शन टू बिकम द नेशनल ऑफ एनी अदर सक्सेसिव स्टेट। जो सक्सेसिव जो स्टेट बटी है, जो दो बार बटे हैं, उनमें से वो किसी भी स्टेट की नागरिकता ले सकते हैं। दे हैव ऑप्शन एंड सम प्रिंसिपल अप्लाइज इन दिस केस इन द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी आल्सो, कि यहाँ पे टेरिटरी एक्सचेंज कर ली जाती है दो स्टेट्स के द्वारा, तो वहाँ पे वो ऑप्शन होता है कि आप उस पहले वाले स्टेट के नागरिक बने रहना चाहते हैं कि दूसरे वाले के नागरिक बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका इसका अक्वायर करने का लिया जा सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन आल्सो, तो नेशनलिटी कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बट इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट। ये रजिस्ट्रेशन वाला तरीके की हम बात करते हैं तो ये एक स्टेट से अदर स्टेट में आपको अलग अलग तरीके इसको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको नेशनलिटी एक्वायर करने के कई तरीके बताए हैं, तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द अबाउट द लॉस ऑफ नेशनलिटी, भी नेशनलिटी को खत्म कैसे किया जा सकता है। यदि हम लॉस ऑफ नेशनलिटी की बात करते हो तो देयर आर कैनी मैनी मेथड्स बाय विच नेशनलिटी कैन बी लॉस, खत्म की जा सकती है। फर्स्ट मेथड इज बाय रिलीज के द्वारा। फॉर दिस इट इज असेंशियल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द सेम। इफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड द पर्सन कंसर्न इज रिलीज फ्रॉम द नेशनलिटी। भी वहाँ पे एक व्यक्ति जो अपनी नेशनलिटी को खत्म करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन देगा और जैसे ही उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी वो उसकी नेशनलिटी वहाँ से रिलीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेकेंड वन इज बाय डेप्रीवेशन। Deprivation means in case a person obtains employment in another state without seeking prior permission of, वहाँ पे बिना परमिशन के उसने कहीं दूसरी जगह पर अपनी एम्प्लॉयमेंट ले ली है, नौकरी कर ली है, ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द नेशनलिटी। वहाँ पे उसकी जो नेशनलिटी है वो खत्म कर दी जाएगी, डिप्राइव कर दिया जाएगा उसकी नेशनलिटी से। इसको कहते हैं बाय डेप्रीवेशन, नेशनलिटी खत्म की जा सकती है। थर्ड वन इज बाय लॉन्ग रेजिडेंस अब्रॉड। Means if a person resides abroad for a long period, his nationality ends। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगातार किसी दूसरे देश में जाके रहने लग जाता है तो वहाँ पे जो उसकी पहले वाली जो नेशनलिटी है उसका एंड हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट मेथड इज बाय रेन्यूंसिएशन। रेन्यूंसिएशन के द्वारा भी नेशनलिटी को लॉस किया जा सकता है। इफ ए पर्सन एक्वायर्स नेशनलिटी ऑफ मोर देन वन स्टेट, ही हैज टू मेक ए चॉइस इज टू विच कंट्री ही विल रिमेन द नेशनल,
कि वहाँ पे जब एक आदमी एक से ज़्यादा स्टेट की नेशनलिटी एक्वायर कर लेता है तो वहाँ पे उसके पास ये होता है कि भी चॉइस होती है कि वो कौन से देश के नेशनल बने रहना चाहता है। तो वहाँ पे वो जो करेगा तो नेचुरली कि वो एक एक स्टेट की उसे जो नेशनलिटी है उसको रेन्यूसिएशन करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा और दूसरे को उसका नेशनल बने रहना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे क्या कहेंगे कि वेयर ए पर्सन एक्वायर्स नेशनलिटी ऑफ मोर देन वन स्टेट देन ही हैज टू मेक ए चॉइस टू विच कंट्री ही विल बी रिमेन नेशनल, जिस कंट्री का वो नेशनल बने रहना चाहता है। एंड द नेक्स्ट मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स इन दिस इफ ए पर्सन कैन गेट नेशनलिटी ऑफ अ स्टेट इन प्लेस ऑफ नेशनलिटी ऑफ अनदर स्टेट, भाई जहाँ पे एक नेशनलिटी उसने ली हुई है नेचुरली कि वो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता है नेशनलिटी को, वो उसकी जगह दूसरे देश की नेशनलिटी अक्वायर कर सकता है। इन सम स्टेट्स ऑफ द नेशनलिटी टर्मिनेटेड बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे नेशनलिटी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अ पर्सन गेट्स नेशनलिटी ऑफ वन स्टेट इन प्लेस ऑफ द अनदर स्टेट, तो वहाँ पे एक स्टेट की जगह से दूसरे देश की नेशनलिटी मिल जाएगी। ये आपको मैंने बताया सारा का सारा नेशनलिटी को लॉस करने के तरीके। और इसके बाद आप देखेंगे देयर आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनलिटी एंड द सिटीजनशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनलिटी एक होता है नेशनलिटी और दूसरा होता है सिटीजनशिप। जब हम नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस होता है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप बोथ आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों के दोनों एक तरह से अलग से कंसेप्ट माने जाते हैं। वो कैसे? यदि हम बात करें नेशनलिटी की तो नेशनलिटी इज द लीगल रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द नेशन एंड द इंडिविजुअल एंड थ्रू द नेशनलिटी द सिटीजन एंड नेचुरल राइट्स ऑफ ए पर्सन मे कम एंड ऑल द सिटीजन्स मे पोजेस द नेशनलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। अ पर्सन हु पोजेसेस ओनली नेशनलिटी इन ए पर्टिकुलर स्टेट मे नॉट पोजेस ऑल द पॉलिटिकल राइट्स। बट इफ वी टॉक अबाउट द सिटीजनशिप, यदि हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप में आप देखेंगे इट डिनोट द रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट लॉ, वहाँ पे व्यक्ति और जो स्टेट है उसके बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है। और जबकि मैंने आपको बताया था जब आप नेशनलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे नेशन और इंडिविजुअल के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा था। और यदि नेशनलिटी की हम बात करें तो वहाँ पे सिटीजन के सिविल और जो नेचुरल राइट्स थे वहाँ पे उसको उसके द्वारा दिए जा रहे हैं, उस राज्य के नेशनलिटी के द्वारा दिए जा रहे हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द सिटीजनशिप द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप आर द सोल कंसर्न्स ऑफ द स्टेट लॉ, वहाँ पे स्टेट लॉ के द्वारा उसे अधिकार दिए जा रहे हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द नेशनल्स टू मे बी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये कोई जरूरी नहीं कि वो जितने भी नेशनल होंगे वो उस देश के नागरिक भी होंगे। एंड सिटीजन्स आर दोज पर्सन्स हु पोजेसेस फुल पॉलिटिकल राइट इन दैट स्टेट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिटी एंड द सिटीजनशिप। ये मैंने आपको नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बीच में कुछ अंतर बताए हैं। तो दिस वाज द सर्टेन important differences between the nationality and the citizenship, and this is one of the most important question for the examination point of view. If you have any doubt then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.